Owaisi also turning up to cast his polls in Hyderabad. Okay, live pictures coming in, ladies and gentlemen. Cutting to these pictures back to back. Asaduddin Owaisi standing in queue inside the polling booth there with his family at Hyderabad polling station. Asaduddin Owaisi there. Early voters, Madhvi Lata beat him to it to get to the polling booth first this morning. Madhvi Lata first in line. In fact, she was one of the first voters in Hyderabad this morning. Very, very interesting. Even before polling began, Madhvi Lata had reached the polling booth to cast her vote. And there you have it, Asaduddin Owaisi. You cannot write off Asaduddin Owaisi, Shivangi and Suesha, because Asaduddin Owaisi has been a several-time MP. Whatever you say about him, he's very popular in Hyderabad. And he's very popular because the controversies aside, he and his family run many philanthropic क्रिया होती है। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार क्या रहेगा मार्जिन उससे अधिक रहेगा। सर ये जो 75 साल की उम्र वाला जो बात है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कही गई है, आजकल अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। आपके लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन आपको टिकट मिला और आप प्रत्याशी हैं। देखिए, मोदी जी को देश की जनता अभी नहीं बल्कि जब तक वो काम करने लायक रहेंगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इन घोटालेबाजों को मोदी से डर लगता है, इसीलिए अभी तो बेल पर आए हैं केजरीवाल, फिर जेल जाएंगे। गिरिराज सर, मैं आपको तब से जानती हूँ जब ये सनातन या हिंदुत्व की बात करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। इस बार आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है वो क्या है? क्या मुद्दा फिर एक बार सनातन है या दूसरे अहम मुद्दे हैं जो? देखिए, मोदी का मुद्दा विकास 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 है, लेकिन अगर लालू यादव जी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दे, नौकरी पिछड़ों का नौकरी छीने, कभी लालू जी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, यादव कोयरी कुर्मी पिछड़ों को उन्होंने कहा कि आओ आओ आओ, आज पिछड़ों का नौकरी छीन रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण नौकरी में दे करके। तो हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या इसे पाकिस्तान बना देंगे? X, Y, Z, whatever it is. And then the work hard which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Sir, CPT says they're going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSB. 4 years of service, you're out. Because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand. It has not come out. It will come out very soon. आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की
आवाज सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। So Madhi Lata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your five national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this. Because 4-year service, you are out. Sir, like they claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. Secret alliance की बात. If this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years? But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So, this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अभी उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे। आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc Alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की आसिफ जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहिए। नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओ इसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात में उनका नाम पॉसिबल है 400 पार। देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा।